नमस्कार सर। आपकी अनुमति से सर we'll start the proceedings sir. At the outset I would like to welcome Honorable Minister for Tribal Affairs Shri Arjun Munda ji. I welcome Honorable Minister for Health and Family Welfare Dr. Harshvardhan ji. I also welcome Honorable Minister of State for Health and Family Welfare Shri Ashwini Kumar Chaubey ji, who has joined us virtually sir. I welcome the colleagues from the Ministry of Tribal Welfare, Additional Secretary Ma'am Aarti Ahuja ji, colleagues from the Central TB Division. I also extend a very warm welcome to all the participants who have connected with us today for this function from the states, both from the Tribal Welfare Department and from the Health Department. Sir, today we are gathered here for the launch of Tribal TB Initiative, which is a joint initiative of Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Tribal Affairs. Sir, for TB, the two ministries have been working together for some time now, and this initiative is the result of our efforts for the past 6 to 9 months, where we have been working together to try and forge convergence in our efforts for targeting to end TB, especially in tribal areas, and that's the function today, sir. If you permit, sir, there is a brief presentation about the tribal TB initiative. So this is also a part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav, the charter of activities that we have from the Ministry of Health shared with our senior group of secretaries, which in turn is being shared with the Department of Culture, which will present the whole India at 75 initiatives to the Honorable Prime Minister and to the Cabinet Secretariat. We request the Ministry of Tribal Affairs also to include this as a part of your calendar of activities, because it's a joint initiative. Next. Yeah, sir, if you look at the scenario in terms of TB burden in tribal areas and among tribals, sir, at the national level, our incidence for 2019 is 193 new TB cases per lakh population, which translates into 26.4 lakh cases, which is 27% of the global TB burden. In terms of mortality, the estimates, and these are WHO World TB Report 2020 estimates, bringing the estimates for 2019. The mortality is 33 deaths per lakh population due to TB, translating into 4.36 lakh deaths, and 32% of the mortality due to TB in the world is estimated to be in India. In terms of burden among tribals, sir, in 2018, 19 and 20, you can see that consistently the proportion of tribal patients among the total TB patients has been 10.1%, 10.1% and 10.2%. So generally we observe that approximately 10% of our TB cases are those of those belonging to the tribes. Among them, sir, approximately 32 to 34% are women. So those TB patients which we are able to detect, out of that 32 to 34% patients are women. At the national level too, sir, out of the total cases that we detect, the approximate percentage of women at the national level in the overall number of cases also varies between 30 and 35%. So it's not as if that among the tribals, this statistic does not suggest that among the tribals the proportionate amount of incidence of TB is more or less in among the tribals. Next. Sir, in the tribal areas and the national, we have presented from whatever we have from the Nikshay portal, which is what we use for tracking TB patients. In terms of known status of HIV at the national level, 92% of our TB patients, we know the status of HIV. Among the tribal patients, that percentage is 95%. Diabetes is because diabetes is also a risk to TB, so therefore among the TB patients, we know the status of 82% of our TB patients, whether they are diabetic or not.
and that remains the same for tribal patients also. Uh, for the universal drug susceptibility testing, which is done for assessing drug resistance and starting the appropriate treatment, at the national level, our coverage is around 67% of the TB patients get the UDST. But since this is done only for pulmonary TB, and among the tribals, this is 74%, which basically indicates that the proportion of pulmonary TB perhaps in tribals is higher, because we are covering almost everyone. So 70% is the benchmark that we assume, that 70% of cases will be pulmonary TB cases. So national level पे ये average 67% का है, but among tribals this is 74%. So this basically indicates that proportion of pulmonary TB among tribals is higher than the proportion of pulmonary TB at the national level. Then in terms of, since we started this year in 2020, we started the bidirectional screening of COVID. So for every COVID person being tested for COVID, he should also be tested for TB. And somebody who is being tested for TB should also be tested for COVID. So among our TB patients, since we started this initiative in September, October last year, so far 25% of the total patients we know the status. But if you look at the numbers starting from September, October, this percentage is around 60%. 60% of the TB patients also got tested for COVID. Among the tribals, that's slightly low. That may have been because of the limitations on distances or people having to make another trip for getting tested. But now that we are moving towards providing TB services through the health and wellness centers, we believe that these numbers are likely to further improve. Next. So these are a few initiatives under the National TB Elimination Program which are available specifically for tribal areas and tribal populations. So we do have a provision for a tribal action plan in the annual action plan for TB, which the states submit to us every year. We do support states for monitoring and supervision. The tribal action plan is basically focused on interventions related to early diagnosis and complete treatment of TB. We have differential norms and guidelines for hard to reach areas. So for the tribal areas, if the states ask for more resources, which are slightly above the usual norms for our support, we do support the states. And we also acknowledge the presence and importance of traditional healers. So if any state prepares a proposal involving traditional healers in terms of either early detection of TB cases or in terms of creating awareness, so we do support such interventions under the National Health Mission. Then we provide rupees 750 as an incentive for travel, acknowledging that population densities in tribal areas are low and therefore distances are higher. So our designated microscopy centers in tribal areas may be located, let's say, at 15 kilometers from the village, and therefore we do, acknowledging that, we do provide additional transport assistance for TB patients in tribal areas so that they can get tested, and if they are found to be TB patients, then we make sure that they are put on treatment. A TB treatment supporter is assigned to them so that the treatment adherence can be ensured. Then we have a Nikshay Poshan Yojana, sir. This is available to all TB patients, but this is just for the knowledge of Honorable Minister, sir, and colleagues from the tribal welfare, that we do provide 500 rupees per month as nutritional support for TB patients for the duration of the TB treatment. So most of the TB patients who are sensitive to drugs, normally the treatment duration is 6 months. So this amount is around 3,000 rupees for the duration of treatment. But for drug resistant TB, the treatment could be as long as 2 years. And therefore there we do support 500 rupees for all the 24 months. Then we have relaxed norms for tribal areas, sir. For designated microscopy centers, our norms for general population is 1 lakh, 1 DMC for 1 lakh population, but for tribal areas we do support DMCs at 50,000 population. Similarly for TB treatment units, the general areas we set up a treatment unit at 2 lakh population, but for tribal areas we set up a TU for 1 lakh population. Then we have tribal areas mapped in Nikshay, so we can take out
just as I presented data in terms of how many tribal patients and how many of them we know of various types of comorbidity status, etc. So in our Nikshay system, we have the mapping available so that we can review if required, specifically related to tribal areas or tribal patients. Then we do support IEC and awareness generation through various media, various means of communication, and also support multi-sectoral collaboration for ending TB. This being one of the prime examples of collaboration, sir, that we are jointly launching this initiative today. Next. So these are the four broad heads under which the activities under the Tribal TB initiative being launched today will be carried out. So this initiative will help the states in doing vulnerability mapping followed by quarterly active case finding to make sure that we reach out to the population level, at the community level, to detect cases as early as possible. So the initiative will provide technical assistance to states to do vulnerability mapping, to train the field workers and ASHAs for symptomatic screening of TB so that people can be screened, and also create mechanisms for assisting people to access TB care services either for testing or for treatment, etc. Then the second is capacity building of frontline workers and vulnerability reduction. So this component would mean that, as I said, sir, training of healthcare workers, community outreach workers, which are ASHAs, for symptomatic screening, and then training wherever necessary of the health workers for doing testing and making sure that things are captured on Nikshay, and also to develop some sort of a tool to assess whether the vulnerability mapping which will be done this year, whether we are moving towards reduction in vulnerability with passage of time or not, or whether our efforts are directed in the right way or not. So this initiative will also develop some sort of a framework for measuring the progress towards reduction in vulnerability. We also envisage to ensure multi-sectoral collaboration for social determinants of health. TB is one of the main reasons for people getting into the disease is undernutrition. So wherever our joint efforts can facilitate better nutrition for people, especially among vulnerable households and vulnerable areas, so that would be targeted, sir. And wherever necessary, we would also support the states and districts in terms of their specific needs and projects which they need to undertake for eliminating TB at the district level, sir. Next. So these are the broad roles that we have identified, and we'll seek your further guidance in this. We will provide, we already have vulnerability mapping tools and framework and active case finding guidelines. So we will, these are already disseminated to the states. The states are already conducting this, but being a part of this initiative for the tribal areas, we'll try and take special measures so that this mapping and active case finding does get fully implemented in tribal areas. Then coordination with states and districts for implementation. So this, I believe, both the ministries will do with their respective counterparts. We also envisage to assist the states and districts to develop their district health action plan for elimination of TB. Now that you are aware, sir, on World TB Day, we have already reached a stage and the journey has begun. Lakshadweep has now been certified as TB free, and one of the districts in the country, that is Badgam in J&K, has also been certified as TB free. So now that confidence will come that it is indeed possible to eliminate TB by 2025, and we are targeting to develop these district level action plans for ending TB by 2025, especially in tribal districts, sir, because that's where most of the challenges lie on account of distances, low population density, nutritional status, and adverse living conditions, sir. Then joint monitoring and review, of course, will be done jointly, sir. Ministry of Tribal Affairs will provide financial assistance on request of states.
under various schemes of the ministry. But this idea would be that whatever can be funded under the National Health Mission, we will support, sir. Wherever we have a resource constraint, specifically for tribal areas, we will request the Ministry of Tribal Affairs to supplement the resources based on the specific project proposals of the states, which should be for tribal areas and tribal populations. And then another very important aspect of this initiative is, sir, that the Ministry of Tribal Affairs, through the Tribal Research Institute, undertake studies to assess what are the underlying causes, is there something that we are missing, are our efforts directed in the right direction or not, and will also set up some centers of excellence to provide support to the field units for taking care of TB, sir. Sir, this project is supported by USAID and Piramal Foundation. So these are the two agencies which will set up a national technical support unit, which will help both the ministries in terms of making sure that whatever we commit through the initiative is really indeed implemented, sir. Next. That's it, sir. Thank you very much. I now request my colleague from the Tribal Affairs Ministry to supplement Dr. Navalji, please. सर, जैसा आप जानते हैं सर, हर मिनिस्ट्री को अपना एक डेडिकेटेड अमाउंट ट्राइबल वेलफेयर के लिए खर्च करना होता है सर. एंड सोशल सेक्टर मिनिस्ट्रीज में जो हेल्थ का जो मैंडेट है, दैट इज़ विद द हेल्थ मिनिस्ट्री. एज फार एज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इज़ कंसर्न्ड, हमारे पास कोई डेडिकेटेड स्कीम ट्राइबल हेल्थ के लिए नहीं है. बट जो गैप फिलिंग है, जैसा सर ने बताया, तो गैप फिलिंग में हमारी डिफरेंट जो स्कीम्स हैं उसके थ्रू हम लोग फंडिंग करते हैं सर. लगभग 4000 करोड़ डेडिकेटेड एसटीसी कंपोनेंट में ट्राइबल हेल्थ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास है सर. 300-350-400 करोड़ के करीब, डिपेंडिंग अपॉन स्टेट्स की रिक्वायरमेंट्स, हम लोग अपनी डिफरेंट स्कीम्स में फंड करते हैं. 25 से 30 करोड़ लगभग आयुष के पास है सर ये. और बट डिस्पाइट बीइंग सो मच फंड्स अवेलेबल सर, जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उसमें जो ट्राइबल हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो IMR है, MMR है और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, एंड स्पेशली सर अनीमिया और जो वेट वाली जो इश्यूज़ हैं वो ट्राइबल्स में सबसे ज़्यादा पाई जा रही हैं. नेक्स्ट स्लाइड सर. तो सर ये एक एक्सपर्ट कमेटी सर एक बिठाई थी सर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सर इन 14-15, जिसने 2 साल पहले अपनी रिपोर्ट भी दी थी सर. उसकी 1-2 बार मीटिंग्स, जॉइंट मीटिंग्स हमारी होनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड के कारण हो नहीं पाई. मैं उसकी रिपोर्ट्स की डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट 4 कंपोनेंट्स मेजर कंपोनेंट हैं सर. उसमें सबसे पहला था कि ट्राइबल स्पेसिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है सर. जितने पुराने NFHS होते थे सर, 14-15 तक जो NFHS हुए सर, उसमें डेटा ट्राइबल स्पेसिफिक नहीं था. बट आफ्टर दिस रिपोर्ट केम सर, और हम लोगों ने NFHS के साथ बैठ के ट्राइबल स्पेसिफिक डेटा 177 ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स का बनवाया और उसकी डिस्ट्रिक्ट फैक्ट शीट्स भी बनवा दी सर. तो वो डेटा अभी, जो डेटा की शॉर्टेज थी सर, वो अभी नहीं है सर. और जो नेक्स्ट NFHS विच इज़ अंडर प्रोसेस सर, उसमें भी ट्राइबल स्पेसिफिक डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज 175 ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स 25% से ज़्यादा उनका डेटा अवेलेबल होगा सर. सेकेंडली सर, विद पीरामल स्वास्थ्य सर, हमने एक स्वास्थ्य पोर्टल डेवलप किया सर, जिसमें NFHS का डेटा सर और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, WCD से और डिस्ट्रिक्ट से सर, इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज 177 डिस्ट्रिक्ट, वो कंप्लीट डेटा सर डिस्ट्रिक्ट वाइज आ रहा है, जिसमें सारे इंडिकेटर्स, चाहे वो हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं, शॉर्टेज का है और डिजीज़ का है, क्या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मैकेनिज्म्स है, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, जो रेलेवेंट इंडिकेटर्स थे वो सारा कैप्चर कर रहा है. और उसका एक डैशबोर्ड भी है सर, जो कि अगर समय मिलेगा 2 मिनट में हम लोग दिखाएंगे आपको सर. थर्डली सर, सिकल सेल, जैसा कि आप जानते हैं सर, एक ट्राइबल में एक इम्पॉर्टेंट एक इशू है सिकल सेल को लेके. तो सर ने सिकल सेल के लिए एक काउंसिल भी बनवाया था, जिसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, रिस्पेक्टेड कई इंस्टीट्यूशंस के डॉक्टर्स हैं सर, मिनिस्ट्री से लोग हैं और हेल्थ मिनिस्ट्री के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. सिकल सेल पे भी हम लोग जो है उसके डेटा को लेके सर काम कर रहे हैं.
सेकंड जो एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस थी सर, इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स को लेके और स्पेसिफिक हेल्थ एक्शन प्लान कोई ट्राइबल्स का नहीं रहता है, और थर्डली एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर को लेके उनकी 3 थी सर। तो सर लास्ट ईयर हम लोगों ने सर एक ट्राइबल हेल्थ एक्शन प्लान बनाया था सर, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ, नीति के साथ और सभी स्टेट्स के साथ शेयर किया। इनफैक्ट उसको सर सभी स्टेट्स ने एक्सेप्ट किया और उसके बेसिस पे अपने प्रपोजल्स भी देने शुरू कर दिए। तो हम लोगों की एक ये रिक्वेस्ट है कि सर जो ट्राइबल हेल्थ एक्शन प्लान के जो PIPs बनते हैं स्पेशली फॉर पर्टिकुलर स्टेट, उसमें ट्राइबल स्पेसिफिक जो एरियाज हैं उनको ध्यान में रखने के लिए। सेकेंडली सर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एक्शन प्लान के बारे में सर ने ऑलरेडी बता दिया सर। सर एक इसमें रिकमेंडेशन थी कि एक ट्राइबल का एक प्रॉपर वर्टिकल होना चाहिए सर। उसके लिए हम लोगों ने एक सर ने अप्रूवल दिया सर, ट्राइबल हेल्थ सेल एक छोटा सा बना रहे हैं विच विल कोऑर्डिनेट विद द इंटर मिनिस्ट्री, स्टेट्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन सर। और एक नेशनल काउंसिल ऑन ट्राइबल हेल्थ सर, जब लास्ट टाइम सर आपसे मिले थे तो सर का ये था कि अगर दोनों मिनिस्टर्स की एक प्रेजेंस में साल में 1-2 मीटिंग्स हो जाएं, सो वी विल कम टू दैट। नेक्स्ट स्लाइड। तो सर थर्ड इसमें था सर कि ट्राइबल हीलर्स एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन सर और इंडिजिनस प्रैक्टिसेस, उनका एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल्स है, क्योंकि ट्राइबल्स कोई भी फैसिलिटी लेने से पहले दे सर्टनली आस्क दीज हीलर्स कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और काफ़ी जगह पे पार्लियामेंट में भी जब भी हम लोगों का स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स हुई तो सभी ने ये बोला कि जो ट्राइबल हीलर्स हैं उनकी आप कैसे जो इंडिजिनस नॉलेज है उसको आप प्रिजर्व करना चाह रहे हैं और उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लेके आना चाह रहे हैं सर। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर को सर हमने एक प्रोजेक्ट दिया सर, प्रवारा है सर महाराष्ट्र में, उसको दिया सर पतंजलि। इस तरह से हर डिफरेंट स्टेट्स में सर हमने ट्राइबल हीलर्स को आइडेंटिफाई किया है सर। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है जिसमें वो इनको रजिस्टर करते हैं सर, और उनके लिए एक ऐसा करिकुलम भी बना रहे हैं ताकि बेसिकली जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, अगर उनको ये लगे कि अब इसके बाद मेरे को हॉस्पिटल भेजना है तो उस तरह का एक करिकुलम, ताकि बाकी चीज़ें तो सर वी कांट स्टॉप देम कि आप उनके पास मत जाइए, बट अभी इस स्टेज के बाद मैं नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ सर, तो उस तरह का एक करिकुलम भी बनाया है सर। और जो ट्राइबल एरियाज में प्लांट्स हैं उसकी नाइपर के थ्रू उसकी वैलिडेशन, वो भी सर हम लोग पायलट प्रोजेक्ट्स देके ये हीलर्स पे जो कमेटी का था, वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दिस सर। सर सिकल पे भी सर एक पोर्टल बनाया, क्योंकि सिकल सेल में सर हम लोगों ने एक जो ये टेस्टिंग कराई थी, लगभग 1.5 करोड़ टेस्ट हुए थे सर। उसमें 15 लाख के करीब जो सिकल सेल कैरियर थे और लगभग 1 लाख के करीब पॉजिटिव थे सर, बट उसके बाद कोई कॉम्प्रिहेंसिव डेटा उसका नहीं मेंटेन हो पाया सर। तो एक डेटा को लेके उसकी क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए सिकल की, कहाँ पे डिजीजेस हैं, उनकी ट्रेनिंग सिकल सेल को लेके, अवेयरनेस प्रोग्राम सर, उसको लेके एक सर ने काफ़ी उसमें इनिशिएटिव्स लिए हैं सर। वी आर कमिंग फॉरवर्ड विद द गाइडलाइंस जो कि हमने मंत्रालय के साथ भी शेयर की हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सर दिस इज अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल सर। दिस इज शोइंग नॉट ओनली द डैशबोर्ड अबाउट 177 डिस्ट्रिक्ट्स, सिकल सेल सपोर्ट कॉर्नर, और सर ट्राइबल हेल्थ पे जो NGOs और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रहे हैं, उसकी भी ये एक मैपिंग करता है सर पोर्टल। और आलेख करके एक मैगजीन है सर जो कि क्वार्टरली मैगजीन है, तो चूंकि इस बार ये ट्यूबरक्लोसिस का था, वी विल बी रिक्वेस्टिंग यू टू लॉन्च दैट सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो इसी तरह से सर सिकल सेल सपोर्ट कॉर्नर में सर उसका पूरा डैशबोर्ड है सर, और इसमें भी सर हम लोग 19 जून को प्लान कर रहे हैं वर्ल्ड सिकल सेल डे पे सर एक डिटेल्ड मैकेनिज्म। सर ने 2 डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई है सर, उन्होंने कंप्लीट बुकलेट जो पुरानी गाइडलाइंस थी और जो अभी नई जो इनोवेशंस आ रही हैं उसके मुताबिक भी क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हैं, हमें कितनी फंडिंग चाहिए, उसके लिए भी सर सिकल सेल पे भी हम लोग चाहेंगे कि इसमें कोलैबोरेशन हो। नेक्स्ट, ये आलेख के बारे में सर आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस, ऑलरेडी विशाल जी ने इसके बारे में सर टीबी के बारे में बता दिया। नेक्स्ट,
ये सर जो ट्राइबल हेल्थ सेल है सर, उसमें कुछ ट्राइबल एक्सपर्ट्स होंगे सर, और बेसिक पर्पस सर दिस विल बी अ वेरी स्मॉल यूनिट सर, कि जो ट्राइबल रिलेटेड जो हेल्थ आउटकम्स हैं उनके बारे में, और एसटीसी मैकेनिज्म जो पैसा जा रहा है स्टेट्स में सर, उसमें कहीं भी ट्राइबल स्पेसिफिक आउटकम्स नहीं आते हैं। एक जो पैसा यहाँ से जाता है वो एक कॉमन पूल में चला जाता है, बट वो ट्राइबल एरिया में कितना खर्च हुआ या उसमें कितनी PHCs बनी, उसका डायरेक्टली आउटकम नहीं आ पा रहा है। और उनके जो प्लान्स भी बनाने में तो ये सिस्टम हेल्प करेगा सर। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो NGOs हैं, उसमें सर IT प्रोफेशनल जो कि हमारा पोर्टल है, और डोमेन स्पेशलिस्ट, इट्स अ वेरी स्मॉल हेल्थ सेल विच इज़ अंडर प्रिपरेशन सर। नेक्स्ट, ये सर एक नेशनल हेल्थ कोलैबोरेशन में सर, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर, TB, ब्लड्स डिजीज़ एंड मेन स्ट्रीमिंग ऑफ ट्राइबल हीलर्स, जो ये मेन 4 हैं सर। और हेल्थ केयर डिलीवरी में जो बेसिकली जो हेल्थ गैप्स हैं सर, उसके बारे में बजट की एलोकेशन, उसके बाद चैनलाइजिंग एजेंसी स्टेट्स लेवल पे और मिनिस्ट्री लेवल पे सर, उसको कोऑर्डिनेट करना। फिर गाइडलाइंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस, रिसर्च, और ये बेसिकली जो ये ट्राइबल इंटर मिनिस्ट्रियल हेल्थ जो काउंसिल है सर, कमेटी, उसका ये बेसिकली रहेगा सर मैंडेट। नेक्स्ट सर, दिस विल बी दी, वी हैव प्रपोज सर, co-chair by Ministry of Health and Family Welfare and Tribal Affairs सर। तीनों मिनिस्ट्रीज के सर सेक्रेटरीज या जॉइंट सेक्रेटरीज सर ये रहेंगे। और नीति आयोग से सर ऑलरेडी पीरामल फाउंडेशन सर, दे हैव टॉक, जो कि 177 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं सर, उसके बारे में नीति आयोग इज़ ऑलरेडी डूइंग थिंग, पीरामल उसमें कर रहा है सर। और सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर, दिस इज़ दी ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव सर। इसमें सर जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सर, उन्होंने फंडिंग सपोर्ट जो है, कोर पार्टनर्स पीरामल है, बिल मिलिंडा गेट फाउंडेशन एंड अदर पार्टनर्स, उन्होंने एक साल में अप्रॉक्सीमेटली $8 million दे आर गोइंग टू सपोर्ट विद दिस कोलैबोरेटिव सर। देन इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर होंगे इसमें, देयर विल बी सम टेक्निकल पार्टनर्स, नॉलेज पार्टनर्स। जैसे अभी कई एरियाज़ में सर, जहाँ पे इवन प्राइमरी हेल्थ सेंटर या CHCs बन भी गए हैं, डॉक्टर्स की कमी है, तो किस तरह से हम टेलीमेडिसिन को कर सकते हैं या मोबाइल एम्बुलेंसेस को कर सकते हैं। पर्पज़ इसकी जो गैप्स हैं सर, उसको एनालाइज करके उस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का या लोकेशन का या हैमलेट का हम लोग उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लान कर सकें ताकि सैचुरेट कर पाएँ। नेक्स्ट, ये सर बेसिकली जो इसका फोकस्ड एरिया रहेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर, वर्किंग क्लोजली विद द ट्राइबल कम्युनिटीज़, उनको अवेयरनेस करना कि आपके बारे में क्या चीज़ें हैं सर, और उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में बताना, लेके आना, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इंटीग्रेटेड सर्विसेज सर। ये पीरामल फाउंडेशन से जिन्होंने ये पूरा इनिशिएटिव किया है सर, शैलेंद्र जी हैं, आप एक ब्रीफ में सर को बता दो व्हाट इज अबाउट दिस। Sir, so we are planning to launch this tribal health collaborative on the 7th of April, sir. The idea is to really focus on comprehensive primary health care, focus on ensuring that the delivery of services happen on the ground, also ensure that there is community participation from the community side, sir. We have learned quite a bit from the aspirational districts also, and I think our own experience in some of the tribal areas in Andhra Pradesh where we work, I think all of those experiences coming together. So we are trying to build a multi-stakeholder collaborative with both Piramal Foundation and Gates Foundation taking the lead, and we are also in discussions with some of the other leading developmental partners in the country. The request is that if the honorable ministers agree to participate in the launch and launch this collaborative on the 7th of April, I think it will be our honor and privilege. Thank you. एक अगर खुला हुआ है, so sir, that's all from our side sir. So we will request for this initiative because this will go a long way as far as the tribal areas are concerned. This will be an integrated, comprehensive approach for the tribal health sir.
So, sir, this is our dashboard, sir. If we, in fact, sir, we have digitalized all the schemes, end-to-end digitalization. So, this is the central dashboard. If we click at this Swasthya portal, so here we can see, sir, knowledge repository dashboard. If we go to the dashboard, sir, these are the 177 districts, sir. Then if we click on any district, sir, then we get the data in respect. एक कोई click कर दो, किसी एक district को click कर दो, नीचे आ. So this gives the general idea about the literacy rate and what is the socio-dynamic profile. Public health पे click करो. So then what are the allopathic facilities or special care units? We are thankful to the ministry because they are giving us data for as far as the tribal districts are concerned, sir. Also from WCD we are getting this data, sir. What is the position of human resources in that particular district? How many sub-centers are there? How many community centers, district hospitals, then health and nutritional profile. Then just take back the call. This is the position of the IPD beds in that district, sir. So this way, sir, एक बार मेन उस पे चले जाना, बैक पे, डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड नहीं, मेन जो मिनिस्ट्री वाला डैशबोर्ड, फर्स्ट वाला, फर्स्ट, यस, बैक करो, लेफ्ट में, लेफ्ट, एरो, स्वास्थ्य नीचे, सबसे नीचे, स्वास्थ्य. Sir, this is the, sir, on the dashboard, sir, information in respect of these 177 districts you can directly see on the dashboard also, sir. So these are the data which was available district wise, sir. We can see on the dashboard. नीचे more पे click करो. So earlier, sir, we didn't have, as I told, sir, we didn't have any data. Now we, as you can see, sir, we have data of maternity health, district wise, health centers, what is child health, institutional deliveries, family planning, all the entire data is now available, sir. So now we can carry forward from this stage. Earlier we didn't have anything where हम लोग आपके पास आते और कहते. Now we know what are the gaps, हमारे पास क्या funds available हैं, what are the institutional mechanism available with us. Already सर ये दोनों secretaries ने सर एक tribal जो tuberculosis पे states के साथ correspondence already की हुई है. So now the stage is set for launching this tribal health collaborative. Thank you very much. I thank Dr. Navaljeet Kapoor, Joint Secretary, MOTA, for telling us about the efforts of both the ministries and especially the efforts on account of setting up this health cell and the preparation of the tribal health action plan, which is proposed to be launched on the World Health Day on 7th of April. I'll now request honorable ministers to release the guidelines for a guidance note on joint action plan for tuberculosis elimination in tribal areas, sir. A TB special edition of Alek. Yes, sir. तीनों एक साथ हैं. And the tribal tuberculosis initiatives. The joint action plan for TB elimination, sir. And the special edition of Alek, sir, which is a publication of Ministry of Tribal Affairs.
So this particular issue is on tuberculosis. Thank you very much, sir. I now request Honorable Minister of State Shri Ashwini Kumar Chaubey ji, who has joined us virtually, for his kind words. Sir, मैं आपसे आग्रह करता हूँ आपके उद्बोधन के लिए, सर. आज हम सब लोग यहाँ जनजाति टीवी के पहल और उसके अवसर पर विशेष रूप से आज आदरणीय हमारे लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी और साथ ही हमारे आदरणीय जनजातीय मंत्री श्री अर्जुन जी मुंडा और जनजाति विभाग के सचिव यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर श्री आर सुब्रमण्यम जी, श्री विकासशील जी, डॉक्टर नवलजीत कपूर जी और सभी दोनों ही विभागों के सम्मानित अधिकारीगण और राज्यों से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण। जैसा कि हम जानते हैं कि देश में आज आदरणीय प्रधानमंत्री भाई मोदी जी के नेतृत्व में टीबी मुक्त भारत बनाने का जो बहुत ही महत्वाकांक्षी उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए हमारा विभाग और साथ साथ जनजाति मंत्रालय पूरी तरह से कटिबद्ध है, इस दृढ़ता को प्रदर्शित कर रहा है। आज हम सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत की जनजातीय आबादी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और साथ ही जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर पुनः इसको दोहरा रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत ही चुनौती का वर्ष रहा है, उसके बावजूद भी हमने इस पर बहुत ही सार्थक पहल करने का काम किया है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों में टीबी परिचर्या सेवाओं की सुलभता, उनकी उपलब्धता और उपयोग, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली संबंधी मांग और आपूर्ति में जो अंतराल के कारण है वो अत्यधिक प्रभावित होते हैं। आज हम जनजाति कार्य मंत्रालय विशेष करके उनके सहयोग से विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से उन समुदायों तक पहुंचाने, उन तक कैसे हम पहुंच पाए, उसकी कार्यनीति को विकसित कर चुके हैं और उसको फिर से हम उसको संकल्प को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। जहां तक बहुहितधारकों का अभिमुखीकरण का सवाल भी है, मौजूदा समय केंद्रित और स्थानीय महिलाओं द्वारा संचालित कार्यकलापों में संवर्धन और उसके विकास के बारे में हम सब लोग प्रयासरत हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जनजातीय समुदायों को टीबी रोग के शीघ्र निदान और उपचार में सहायता करने के लिए एनटीपी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जनजाति कार्य मंत्रालय के साथ समन्वय करके उनके कार्यकलापों का लगातार अनुसरण करेगा और उसकी कार्यनीति भी बनाते रहेगा। यह मंत्रालय प्राथमिकता वाले राज्यों के स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों में इन दृष्टिकोणों को शामिल करने की पहल कर चुका है। इस संयुक्त प्रयास से हम टीबी परिचर्या और उपचार
के आत्मनिर्भर भारत मॉडल का, जैसा कि अमृत महोत्सव हम देश भर में मना रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए भारतीय स्वास्थ्य परिचर्या वो पारिस्थितिक जीव तंत्र को बदलने का केंद्र बिंदु बनेगा, इसमें कई दो मत नहीं। वर्ष 2020 के दौरान जब पूरे विश्व ने देखा कि कोविड-19 महामारी से अनेकों जीवन, राष्ट्रों की समस्त स्वास्थ्य सेवाएं सरबरा गई थी, वहीं भारत दृढ़ता के साथ खड़ी रही और भारत ने इस बीमारी से डटकर मुकाबला किया और हम कर रहे हैं, और पूरी दुनिया ने एक मिसाल कायम की, इसमें कई दो मत नहीं। जहां जनजाति समुदाय आगे आने में सशक्त होंगे और स्वास्थ्य परिचर्या का लाभ उठा सकेंगे तो सुलभ और सस्ती भी है। नवीन प्रयासों तथा अपनी स्वास्थ्य पद्धति की सतत सहायता से हमने उन चुनौतियों को अपने इस कालखंड में पूरा करने का प्रयास किया है, और जैसा कि कोविड के कालखंड में भी हमने टीबी उन्मूलन की दिशा में काफी उपलब्धि प्राप्त की है। जहां तक इस पहल के माध्यम से मुझे विश्वास है कि दूर दराज के क्षेत्रों में, विशेष करके ऐसे जनजाति क्षेत्र जहां पहुंचना मुश्किल हो जाता है, लोगों को बहुत कठिन है, वैसे लोगों के बीच हमें जाने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से हम उन समुदायों को उनका सशक्तिकरण और जनजाति टीबी पहल का जो हमारा एक प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांत है, और यह न केवल कार्यक्रम तैयार करने में बल्कि इसकी शासन और संरचना में भी जो जुड़ाव होना चाहिए उसे करने की आवश्यकता है। विशेष करके WHO ने वर्ष 2020 के रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक प्रभावित है। लगभग 25 से 26% लोग टीबी के शिकार हुए हैं, और उस दिशा में 2030 जहां दुनिया ने संकल्प लिया और हमने 2025 आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का आह्वान किया है। इसके लिए टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, और विशेष रूप से हम जनजातियों में टीबी का प्रभाव जानते हैं कि 1 लाख व्यक्तियों में लगभग 703 है, और वही राष्ट्रीय औसत 1 लाख व्यक्तियों पर 256 है, तो लगभग 3 गुना अधिक है। और पूरे 10.4% टीबी रोगी देश में अकेले जनजातीय वर्ग में आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत कठिन घड़ी है, और इस चुनौती को स्वीकार करके हमें अगले 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प है उसके लिए काफी तेजी से हमें प्रयास करना होगा। भारत के 75वें स्वतंत्रता वर्ष पर हम सब लोग 2025 तक जो संकल्प है उसको अगले 4 वर्ष में पूरा करेंगे। इसमें कहीं दो मत नहीं। खास करके यूनाइटेड स्टेट के द्वारा USAID के तकनीकी सहायता से जनजातियों एवं अन्य रोगियों का टीबी उन्मूलन किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को संयुक्त प्रयास से प्रभावित करने का कार्य भी चल रहा है, और टीबी हॉटस्पॉट जो जनजातियों के बीच है उसे प्राथमिकता के साथ समाप्त करने का कार्य भी प्रारंभ किया गया है। मुझे खुशी है कि अभी 2 दिन पहले ही केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप जैसे पुरस्कृत हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जिन्हें सम्मानित करने का काम किया। हम सब लोग वहां उसके हस्ताक्षर रहे, और जिस प्रकार से टीबी मुक्त अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये टीबी मुक्त हो चुका है,
केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के बडगाम जिला वो भी टीबी मुक्त हो चुका है, जहां 80% से भी टीबी के मामलों की संख्या में कमी आई है। तो ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है और आज इस अवसर पर मैं आप सबका बहुत बहुत सौभाग्य पूर्वक आप सबको बधाई देना चाहूंगा, खास करके दोनों ही मंत्रालय के माध्यम से जो ये प्रयास चल रहा है। और फेज 1 के 161 जिलों जिसमें जनजातियों की संख्या अधिक है, वैसे 18 राज्यों में कार्य करने का प्रारंभ किया जाएगा। आज 26 मार्च 21 को छठे शेड्यूल अंतर्गत कार्य प्रारंभ हो रहा है। इस कार्य पूर्ण करते हुए मैपिंग कार्य, जो जागरण, कैपेसिटी बिल्डिंग, वर्कशॉप के द्वारा इन सब का स्ट्रक्चर बना करके हमें टीबी उन्मूलन थेरेपी को स्थान देना है। इस अवसर पर मैं दोनों ही मंत्रालयों जो आपस में तालमेल बनाते हुए इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हमें ऐसे समुदायों तक पहुंचने, विशेष करके जो आदिवासी जनजाति क्षेत्र में जो उनके गुरु होते हैं, जो उनके बड़े बड़े नेता हुए हैं, बिरसा मुंडा जी के मार्गदर्शन में, इनका मांझी, ये सभी हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। उन सब का संकल्प दिलाते हुए और उन्हें गांव में ये बताने की जरूरत है, पंचायत लेवल पर हमें जनप्रतिनिधियों को भी साथ लेकर के, और जो ऐसे गुरु हैं, धार्मिक गुरु, उनका भी हम साथ कैसे ले सके, इसका प्रयास होते रहना चाहिए, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी उन पर विश्वास जगा सकें। और हमारे जनजाति भाई जो है वो बड़े ही सरल होते हैं, जब तक उनके गुरु या उनके समुदाय के नेता उन्हें अच्छी तरह नहीं बताएंगे, वो जल्दी इसमें विश्वास नहीं करते। तो मैं चाहूंगा कि इस पर भी विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है। और विशेष करके आज के इस अभियान में तो कार्यक्रम में हम सब लोग शरीक हुए, इसके लिए मैं जिन राज्यों से लोग जुड़े हैं उन सबको भी बधाई देते हुए, और मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए टीबी उन्मूलन की दिशा में, विशेष करके पोषण अभियान पर प्रत्येक टीबी मरीज को 500 रुपया प्रतिमाह जो प्राप्त हो रहा है उनके अकाउंट में जा रहा है, ये हमें और भी शक्ति प्रदान कर रहा है। बहुत बहुत आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं टीबी मुक्त भारत का एक जन आंदोलन, इसे एक जन आंदोलन के रूप में हमें इस अभियान को चलाना है, ताकि जन जन में ये आवाज पहुंच सके। मैं यही कहते हुए आप सब लोगों को बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। टीबी हारेगा, देश जीतेगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा, इसका सगा संकल्प टीबी मुक्त भारत 2025 ये पूरा करना हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके उद्बोधन के लिए। अब मैं आग्रह करता हूं माननीय मंत्री जनजातीय कल्याण विभाग मंत्रालय श्री अर्जुन मुंडा जी से उनके उद्बोधन के लिए। सर। माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर हर्षवर्धन जी, और इस समय जुड़े हुए हमारे राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अश्विनी चौबे जी, यहाँ उपस्थित स्वास्थ्य मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, और इस समय जुड़े हुए बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, सभी राज्यों के प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाओं के सभी पदाधिकारीगण और मित्रों, यह वास्तव में आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ कार्यक्रम जो आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के
और जनजातीय मंत्रालय के तत्वाधान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के अगुवाई में आगे बढ़ रहा है और इसमें दोनों ही मंत्रालय के पदाधिकारियों के द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से वस्तु स्थिति से हम सबको अवगत कराया है। स्वास्थ्य की वास्तविक स्थिति जनजातीय क्षेत्रों में तुलनात्मक ढंग से सामान्य और जनजातीय क्षेत्रों के जो कमियां हैं उसको उल्लेखित किया गया है। वहीं जनजातीय मंत्रालय इस समय किस ढंग से कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ यह सुनिश्चित करने में कि सभी ऐसे महत्वपूर्ण जो चैलेंजिंग क्षेत्र है, चैलेंजिंग एरिया है, उसको कैसे एड्रेस किया जाए। इस समय डेटा के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को देखा, आंकड़ों के माध्यम से बहुत सारी बातें हमारे सामने में आई हैं। मैं इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस अमृत महोत्सव में हम सबको उत्प्रेरित करते हुए सभी मंत्रालयों के लिए 75 ऐसे कार्य को संकल्पबद्ध तरीके से प्रारंभ कैसे किया जाए और उसका सही ढंग से आउटकम आए यह सुनिश्चित किया जाए। इसी कड़ी में इस कार्यक्रम को भी हम सब लोगों ने बहुत ही उत्साह के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, नए संकल्पों के साथ प्रारंभ कर रहे हैं। इस कार्य को बेहतर गति मिले, इसके लिए एक समर्पित टीम कैसे कार्य करे और उसे हम कैसे आगे बढ़ाएं, यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मैं इस समय में 2-3 बिंदुओं को उल्लेख करते हुए बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन के माध्यम से सारी बातें आ चुकी हैं। आगे हमें अच्छा कार्य और उसका परिणामी व्यवस्था कैसे बने ये सुनिश्चित करना है। जैसे अभी हमारे ट्राइबल अफेयर्स के पदाधिकारी ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से कहा है कि किस तरह के व्यवस्था चली आ रही है। 74-75 के दशक में, यानी 70-80 के दशक में एक कार्य योजना देश भर में अध्ययन के बाद उस समय के प्लानिंग कमीशन ने एक बृहत स्तर पर कार्य योजना बनाते हुए प्रबंधन और व्यय के दृष्टि से उन क्षेत्रों को रेखांकित करते हुए जहां गैप्स है उसको कैसे पूरी की जाए, और इसलिए मंत्रालयों के अधीन एक विशेष व्यवस्था बजटीय उपबंध के माध्यम से कैसे बने और 74-75 में एक सामान्य बजट के साथ साथ सभी मंत्रालयों के लिए एसटी बजट, एसटी कंपोनेंट, एसटीसी के व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। ये एसटीसी के माध्यम से सभी विभागों को एक फोकस क्षेत्र के मिनिमम जो व्यवस्था है सामान्य के अलावे, यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि वहाँ के जो गैप्स है, वहाँ के जो कमियां हैं, वहाँ के जो दुरूह परिदृश्य है उसको कैसे एड्रेस किया जाए। और सभी मंत्रालय, इस बार भी आपने बजट के उद्बोधन में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट को देखा होगा, जिसमें उन्होंने पूरी बजटीय उपबंध के बारे में उल्लेख करते हुए कि जनजाति और जनजाति क्षेत्र, आदिवासी और आदिवासी क्षेत्रों के लिए उन्होंने इस बार 58,000 करोड़ से अधिक की व्यवस्था बजटीय उपबंध में किया है। तो ये बजटीय उपबंध कहाँ है? ये बजटीय उपबंध हमारे मंत्रालय में नहीं, हमारे मंत्रालय के व्यवस्था के दृष्टि से यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस एसटीसी कंपोनेंट के माध्यम से हम कोलैबोरेटिव वे में कैसे सभी मंत्रालयों के साथ मिल करके गैप्स एनालिसिस करते हुए यह सुनिश्चित करें कि दुरूह क्षेत्र
क्योंकि जब हम ट्राइबल की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं, तो देश का भूभाग का वह 40% हिस्सा जनजातीय क्षेत्र में, और उसका अधिकांश अगर पॉपुलेशन डेंसिटी को देखा जाए तो कम है, पर यदि हम देखें क्षेत्रफल को वो बहुत अधिक है। 10% यानी 10.5% हमारा टोटल पॉपुलेशन है, और लैंड एरिया 40% है। तो आप अप्रोच समझ सकते हैं कि वो कितना दूर है, एक गांव से दूसरे गांव की दूरी, और गांव से पंचायत की दूरी, और पंचायत से ब्लॉक जो नियरेस्ट, जो हम जिसको CHC और PSC के रूप में देखते हैं, छोटे छोटे जो स्वास्थ्य की इकाई है, तो वहाँ तक जाने में हमें कितना कष्ट उठाना पड़ता है। तो वैसे गैप्स को एनालिसिस करते हुए जो 40% भूभाग में फैले हुए लोग हैं, उनको स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की, और उनके जो एथनिक कैरेक्टर है, जीवन पद्धति है, उसका जो प्राकृतिक अनुनाश्रय संबंध है, उसको बरकरार रखते हुए प्रगति के रास्ते पर कैसे आगे लाया जाए, यह सुनिश्चित करना। तो यह 74-75 के बाद से लगातार हम लोगों ने जो अनुभव किया है और जो डेटा हम लोगों ने देखा है, वह बहुत ही, जिसे कहा जाए कि एक तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अब इसके पीछे हम नहीं जाना चाहते हैं कहाँ कहाँ किस तरह की कठिनाई हुई है, हुआ है, और इसे मैं इस बात के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार, या प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने इस बात को सही ढंग से आकलन करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कहा, और जो डेटाबेस के माध्यम से नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन पहले कार्य करता था कि जो हमारा बजटीय उपबंध का लेखा जोखा और डेटाबेस मैनेजमेंट, वो ट्राइबल अफेयर्स के जिम्मे में दिया कि इसको एनालिसिस किया जाए। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसका पूरा डेटा एनालिसिस सभी मंत्रालयों के साथ, अदर जो भी एजेंसियां हैं उनके साथ, या वास्तविक रूप से जो सैंपल सर्वे है, उन सारे चीज़ों को एकत्रित करते हुए बनाने का काम किया। एंड एक्सपेंडिचर पार्ट को एनालिसिस किया, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और इसलिए इस समय यह मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, यानी जो आज़ादी के दशक में जिस व्यवस्था के साथ कि आइसोलेटेड एरिया को कैसे, आइसोलेटेड एरिया के लोगों को और आइसोलेटेड एरिया को हम कैसे करके गैप्स एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ाएं, जिसकी संवैधानिक व्यवस्था में बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन वास्तविक लक्ष्य को अभी तक हम प्राप्त नहीं कर सके। वह स्वास्थ्य में भी, शिक्षा में भी, या अन्य जो पैरामीटर्स हैं उन सारे क्षेत्रों में। स्वास्थ्य और शिक्षा बुनियादी शर्त है विकास की। इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, जो विकासात्मक कार्यक्रम, हम स्वास्थ्य के सेंटर भी बना दें तो चिकित्सक, यदि ये दोनों चीज़ें बना दे, दोनों चीज़ें उपलब्ध हो जाए, सड़क, इसके अलावा भी मूलभूत जो ग्रामीण क्षेत्रों के, और इसमें जो कमियां हम देखते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो ये है कि हमें इस बारे में बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। जैसे आपने आंकड़ों में दिखाया ट्यूबरकुलोसिस का, यह एक बहुत बड़ा उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम होगा जब हम इस कार्यक्रम को गति देंगे। इसके साथ साथ चूँकि लैंड एरिया इतना अधिक है ट्राइबल पॉपुलेशन के अनुपात में, तो वहाँ पहुँचने के लिए एक है बड़ा मलेरिया प्रोन एरिया। यदि आप देखें तो ये ट्राइबल एरिया में बहुत अधिक एक बहुत ही बुरा अनुभव हम सबके सामने देता है। अब कहना बड़ा मुश्किल है कि मलेरिया से मरे या किसी और से मृत्यु हुई, क्योंकि उसका पोस्टमार्टम तो होता नहीं है, लेकिन हम उसको आंकड़ों में सामान्य तौर पर कभी सकारात्मक कभी नकारात्मक ढंग से बातें करके बिता देते हैं। लेकिन वास्तविक यही है कि मलेरिया प्रोन एरिया ट्राइबल एरिया में एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ एक बड़ी समस्या है जिसके बारे में अभी प्रेजेंटेशन में बताया गया कि जो जेनेटिक प्रॉब्लम है सिकल सेल की, थैलेसेमिया की, या इसके अलावा जनरल जो एनीमिया की, ये सारी समस्याओं के वजह से बहुत सारे कार्यों में गति नहीं मिल पाती है
और इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हम ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स हम यहाँ प्रारंभ करने के बारे में संकल्प ले रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है। और स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार इस क्षेत्र में एक पूरे देश में स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था कैसे हो यह सुनिश्चित करने में लगा हुआ है। हमारा मंत्रालय इसको कोऑर्डिनेटेड वे में कैसे काम कर सकता है, और जो हमारा मैंडेट और टारगेट है कि ट्राइबल एरिया के लोगों का इन सारे चीज़ों से हम कैसे उन्हें सही ढंग से मुक्त करा सके कि उन्हें टीबी मुक्त है, वो मलेरिया प्रोन जोन से बाहर है, और वो ये जो एक डिजीज़ है जो अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से ज़्यादा सही ढंग से हम उसका इलाज कर सकते हैं, बजाय उसके पोस्ट जो ट्रीटमेंट है। तो ये सारी चीज़ों को हम एड्रेस करते हुए कैसे एक हेल्थ सेक्टर में नया इम्प्रूवमेंट लेकर के आए, और हमारे जो लोग हैं, क्योंकि मौलिक सुविधाओं के जो मूल रूप से जो अधिकारी या जो बहुत बड़े आशा के साथ इस व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ लोग है, उनको हम इससे जोड़ करके सही ढंग से काम कर सके। मैं समझता हूँ कि यह इनिशिएटिव हमारे लिए एक दूरगामी परिणाम लेकर के आएगा। मैं इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्रालय के, जनजातीय मंत्रालय के सभी लोगों को कार्य को प्रारंभ करने के लिए, और इस आशा और उम्मीद के साथ कि हम सब मिलकर के इस कार्य योजना को सफलता के सोपान तक पहुंचाने में, लक्ष्य को निर्धारित करते हुए जो हमने कदम बढ़ाया उसको पूरा करने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रिय मित्र और प्रिय साथी, भारत सरकार की कैबिनेट में जो एक लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं झारखंड के, ऐसे भारत सरकार के ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे अपने साथी श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, जिनको अभी हम सब लोगों ने सुना, और सभी यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी आरती आहूजा मैडम, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी जो स्वयं एक योग्य डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर नवलजीत कपूर, श्री विकासशील जी जो हमारे मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी हैं और टीबी के काम में बहुत लंबे समय से कार्यरत हैं, श्री मुकेश कुमार जी, डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, डॉक्टर सुदर्शन मंडल जी, एडिशनल डीडीजी हमारे ट्यूबरक्लोसिस के इस मंत्रालय में, डॉक्टर रघुराम राव जी, डिप्टी डायरेक्टर ट्यूबरक्लोसिस, और इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे देश भर से लोग आज के इस कार्यक्रम के अंदर जुड़े हैं। मेरे साथ यहाँ तो थोड़े से लोग हैं इस कमरे में, कोविड के कारण ये कार्यक्रम भी फिज़िकली नहीं वर्चुअली हो रहा है, लेकिन देश भर के दूर दराज के इलाकों से बहुत सारे अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाएं, ट्राइबल क्षेत्र के अंदर काम करने वाले, निस्वार्थ भाव से लगे हुए लोग, और जो टीबी मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने में अपना संपूर्ण योगदान देना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। कुछ मीडिया के साथी यहाँ जुड़े हैं, कुछ वर्चुअली जुड़े हैं। मैं हृदय से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आज आप यहाँ इस कार्यक्रम में इसको सफल बनाने के लिए आए हैं। विशेष रूप से मैं अपने साथी अर्जुन मुंडा जी को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि ये हम सब के लिए बड़े खुशी का अवसर है।
मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत संतोष का अवसर है। अभी 2 ही दिन पहले हम लोगों ने वर्ल्ड टीबी डे पर बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। सारे देश के और दुनिया के बहुत सारे संस्थानों के साथ मिलकर, और संकल्प लिया सबने। 4 घंटे तक देश भर के लोग जुड़े रहे, और बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो सुबह 10 बजे से लेकर और शाम के 6 बजे तक कार्यक्रम के अंदर बैठे रहे, और उन्होंने हृदय की गहराइयों से संकल्प लिया कि हर हालत में हमको टीबी मुक्त भारत बनाना है, टीबी को हराना है और देश को जिताना है। और उसी श्रृंखला के अंदर आज ये कार्यक्रम, जिसमें स्वयं भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर उपस्थित हैं, एक हृदय में भावना लेकर आए हैं ट्राइबल अफेयर्स के मंत्रालय के लोग, और ट्राइबल हेल्थ के ऊपर एक विशेष इनिशिएटिव एक मंत्रालय में जब क्रिएट किया गया, तो अभी यहाँ मैं बैठे बैठे स्मरण कर रहा था तो मुझे ध्यान आया कि सन 2000 के अंदर जब यहाँ डॉक्टर सीपी ठाकुर इस मंत्रालय में स्वास्थ्य मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय एक हैदराबाद में कार्यक्रम हुआ था, और उसमें सारे साउथ के वैज्ञानिक और साउथ के सभी हेल्थ एक्सपर्ट्स को निमंत्रित किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन में। डॉक्टर सीपी ठाकुर की उपस्थिति थी, और दिल्ली में 5 साल स्वास्थ्य मंत्री रहने के बाद मैं उस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन में सलाहकार के रूप में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए काम करता था, और हेल्थ विजन फॉर 21st सेंचुरी के लिए मुझे उस कार्यक्रम में कीनोट एड्रेस देने के लिए कहा गया था। बहुत सारी बातें उसमें कही थी, लेकिन आज की बात, आज के कार्यक्रम से संबंधित जो एक बात उस समय की मुझे बैठे बैठे स्मरण आई। मैंने उस समय कहा था कि स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जो कि अकेले स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसको सफलतापूर्वक नहीं कर सकता। स्वास्थ्य मंत्रालय को जिम्मेदारी तो ये दी जाती है स्वास्थ्य को ठीक करने की, लेकिन स्वास्थ्य से जो जुड़ा हुआ असली विषय है बीमारियां पैदा करने का या बीमारियों को ना होने देने का या बीमारियों को ठीक रखने का, इसके संदर्भ में देश में हर भारत के मंत्रालय में एक सब डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, उसको मैंने उस समय कल्पना दी थी कि सब डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ होना चाहिए, और उस डिपार्टमेंट की नीतियों को बनाते समय सबका ध्यान जो है विशेष रूप से एक कोने के अंदर कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ विभाग वो बीमारी को ठीक करने के लिए अस्पताल और डिस्पेंसरी खोलने का काम और ये सारे काम अकेले नहीं करके बीमारी हो ही नहीं, इसके लिए चाहे वो एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हाउसिंग का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ट्राइबल अफेयर्स का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सैनिटेशन का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो वाटर सप्लाई का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो लेबर मिनिस्ट्री हो, सबका अपना अपना रोल है। अगर लेबर मिनिस्ट्री को ये ध्यान में आ जाए कि उसके लिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ अपने वर्कर्स का कितना इम्पोर्टेंट है। आज ट्राइबल हेल्थ के लिए आपने एक ट्राइबल हेल्थ का इनिशिएटिव बना दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सैनिटेशन डिपार्टमेंट के लिए जो है कितना बड़ा स्वच्छ भारत की योजना लागू कर दी। इस बार 5 साल के अंदर एक एक घर के अंदर पानी का टैप्ड कनेक्शन बनाने के लिए वाटर सप्लाई के अंदर जो काम हो रहा है और जो पोर्टेबल वाटर देने की जो सोच बनी है, जिसके कारण जो है 2 लाख रुपए से 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का बड़ा बजट जो है भारत के अंदर जो हेल्थ डायरेक्टेड है वो प्रस्तुत किया गया है। तो अगर स्वच्छ पानी मिल रहा है, अगर हमें सैनिटेशन अच्छा हो रहा है, हमारे लिए हाउसिंग की अगर करोड़ों हाउसेस की बनाने की, तो जो टीबी जैसी बीमारियां तो वहाँ कंजेस्टेड इलाकों में होती हैं जब हम लोगों के लिए घर की सुविधा नहीं दे पाते, एक एक घर में 20-20 लोग रहते हैं। आज अगर नितिन गडकरी जी का विभाग रोड सेफ्टी की बात करता है तो हम एक्सीडेंट्स और इंजरी प्रिवेंशन का जो हेल्थ का कंपोनेंट है वो दूसरा डिपार्टमेंट ने उसको अपने हाथ में ले रखा है। तो इसलिए हम एयर पोल्यूशन को हम अगर ठीक से हैंडल कर पाते हैं तो वो हेल्थ को कंट्रीब्यूट करता है। यानी
हेल्थ इतना मेजर कंपोनेंट है कि वो ये निर्माण भवन अकेले उसको हैंडल नहीं कर सकता। सारे मंत्रालयों की सोच में अगर ये आ जाए कि हमारे लिए, और उसी तरीके से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जब उसके बच्चे जब स्वास्थ्य के सैनिक बन जाते हैं, वो मैसेंजर बन जाते हैं पॉजिटिव हेल्थ मैसेज के, तो हमने देखा कि उन्होंने बहुत सारे बड़े से बड़े कार्यक्रमों में डेंगू के अंदर बच्चे काम करते हैं, पोलियो उन्मूलन में काम करते हैं, वो ट्यूबरक्लोसिस ये टोबैको कंट्रोल में काम करते हैं, सब जगह पर काम करते हैं। तो आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भारत सरकार में खासकर नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो एक वर्षों से मन में हमारी कल्पना रहती थी कि स्वास्थ्य को एक जन आंदोलन बनना, और स्वास्थ्य खाली स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं है, स्वास्थ्य सारे मंत्रालयों का एक सामूहिक जो है चिंतन का एक प्रकार से कार्यक्रम है, जिसको होलिस्टिक हेल्थ हम बोलते हैं। वो खाली हेल्थ के ही होलिस्टिक नहीं है, वो पूरी गवर्नमेंट का होलिस्टिक एनवायरनमेंट है। और ट्यूबरक्लोसिस में हमें खुशी है कि बहुत सारे सरकार के विभागों के साथ जब हम ट्यूबरक्लोसिस को 25 तक एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं, तो सरकार के बहुत सारे मंत्रालयों के साथ मिलकर हमने MOUs किए हैं। और खाली MOUs के कारण नहीं, लोग अपने स्वेच्छा से जो है, अपने इनिशिएटिव से सब लोग काम कर रहे हैं। मैं मंत्री जी को व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं, उनके मन में बहुत दर्द है, और वो जानते हैं कि ट्राइबल जो लोग हैं, आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, और इतने सालों के बाद भी बहुत सारी समस्याएं अभी भी विद्यमान हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में भी जो है उन लोगों को सर्व किया है, एक एक प्रॉब्लम को गहराई से समझा है। पिछली बार भी वो जब हमारे मंत्रालय में आए थे, हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी। उनके अधिकारियों के साथ मिलकर हमारा विभाग काम कर रहा है, और आज इस बात की मुझे खुशी है, क्योंकि बहुत सारी बातों को यहाँ दोनों हमारे जो साथी हैं, उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से उन्होंने बहुत डिटेल्ड प्रेजेंटेशंस यहाँ किए हैं। और इस बात का भी हम लोगों को संतोष है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और फिर एमल फाउंडेशन जो है, इस तरह के जो बड़े हमारे पार्टनर्स हैं, वो भी इस सारे काम में हमारे साथ जुड़ गए हैं। और ट्राइबल अफेयर्स ने ट्राइबल हेल्थ का बड़ा प्लान बना दिया है। सारे गैप्स को हम लोगों ने डायग्नोज कर लिया है। जहाँ एक तरफ ट्यूबरक्लोसिस को नेशनल लेवल पर एलिमिनेट करने के लिए हमने पहले ही सारे गैप्स को ढूंढकर और अपनी जो वृहद योजना बनाई है, जिसके कारण जो 10 लाख हमारे जिसे कहते हैं केसेस मिस हो जाते थे, वो आज सिर्फ संख्या 2 लाख पर आकर ठहर गई है। आज हिंदुस्तान में हर ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोज होने के बाद, वो सरकारी सेक्टर में इलाज हो रहा हो, प्राइवेट सेक्टर में इलाज हो रहा हो, उसका जो ट्रीटमेंट है वो चाहे 1 लाख रुपए तक भी एक ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च होता है। जब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस होती है तो 1 लाख रुपए तक उसके ट्रीटमेंट पे खर्च होता है, लेकिन वो सारा का सारा भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय उसकी चिंता करता है। जिन लोगों को बीमारी हो गई है, इनका इलाज चल रहा है। अभी जैसा बताया गया, पिछले मोदी जी की सरकार के अंदर 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा भारत सरकार ने उनके बैंक खातों में डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया है उनके न्यूट्रिशन के लिए। और लेटेस्ट दुनिया की मशीनें जो है, जो कि डायग्नोसिस करती हैं, एक झटके में ही बता देती हैं कि कौन सी वाली ट्यूबरक्लोसिस है। सिंपल तरीके से इलाज से ठीक होगी, 6 महीने में ठीक होगी या 2 साल में ठीक होगी। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी वाली बीमारियां चलेंगी या दूसरी नॉर्मल बीमारियां चलेंगी, वो सारे देश के डिस्ट्रिक्ट्स में सब जगह पर वो उपलब्ध है। प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए जो लोग टीबी की जानकारी देंगे मरीज़ों की, उनके लिए भी इंसेंटिव्स की स्कीम है। यानी इतना कुछ आज हुआ हुआ है देश में, आइडियल एटमॉस्फेयर है। सारे इंटरनेशनल पार्टनर्स हमारे साथ इस काम के अंदर जुड़ गए हैं, और फिर ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमको है, जो कि पूरी तरह से पूरे जज्बे के साथ वो हमारा सबका साथ दे रहे हैं, हमारे को नेतृत्व कर रहे हैं। और वो हमें 2030 के बजाय 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को समाप्त करने के लिए जो है वो हमें प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा
और देश के ट्राइबल इलाकों का इतना ज़बरदस्त अध्ययन करना ट्राइबल हेल्थ के लिए, और उसमें भी विशेष रूप से ट्राइबल टीबी के लिए इनिशिएटिव को विकसित करना, उसके लिए बजट की दृष्टि से भी सपोर्ट रखना और हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करने का भी। तो एक तो ब्रॉड हमारे पास आइडियल एटमॉस्फेयर है कि हमने सारे जो गैप्स हैं सबको ढूंढ लिया है। अभी तो सिर्फ जज्बे से उन गैप्स के डायग्नोसिस को आगे ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाना है कि भाई अब समझ में आ गया है समस्या क्या है, समस्या के समाधान का रास्ता भी समझ में आ गया है, सिर्फ अब उस रास्ते पे चलकर और मंजिल तक पहुंचने की बात है। और इस मंजिल तक पहुंचने में जो कठिनाइयों वाले इलाके थे, शायद उन इलाकों के अंदर भी जो एक्सपर्ट्स हैं, उस इलाकों के जो विद्वान हैं, तो मैं समझता हूँ कि मंत्रालयों के अंदर भी अगर कोई ट्राइबल अफेयर्स को या आदिवासी क्षेत्रों को समझने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए, वहाँ की बातों को हैंडल करने के लिए अगर किसी के पास मंत्रालयों में अगर विद्वता है तो वो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास है। मुझे खुशी है कि आपने सारे ट्रेडिशनल हीलर्स से लेकर और वहाँ की जो सारी कल्चर है और उस सब को ध्यान में रखते हुए आपने अपनी सारी विस्तृत योजना बनाई है। और इस सारे विषय में अगर ट्राइबल एरियाज़ के अंदर हमने ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने की एक बार झड़ी लगा दी, ये झड़ी लगेगी जब एक बार शुरू होगा और देश का 1 डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट, 4 डिस्ट्रिक्ट एक एक करके घोषित होते जाएंगे कि वो टीबी मुक्त हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये एकदम जैसे आजकल खबर वायरल होती है, ऐसे ही टीबी मुक्त होने का अभियान भी जो है ये वायरल होगा। और आज 2 दिन पहले हमने पहली बार जिसे कहते हैं, मैंने उस दिन कहा था कि ये बड़ा शुभ संकेत का दिन था। 24 मार्च जो है वो रॉबर्ट कॉक जिन्होंने टीबी का बैक्टीरिया उसकी खोज की, वो उनके यादगार में ही वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। और उस दिन भारत ने परसों घोषणा की कि उसने जो है लक्षद्वीप के अंदर और बड़ा गांव जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, वहाँ टीबी को एलिमिनेट कर दिया। यानी ये पहला एक संकेत भारत में घोषणा के रूप में आया और उसके लेस देन 48 घंटे के अंदर घोषणा मेरे ख्याल से 5 बजे के करीब हुई होगी, तो अभी तो 5 बजे हमारे 48 घंटे होंगे। हमारे मंत्री के साथ हमको ये कार्यक्रम करने का मौका मिल रहा है। ये कार्यक्रम भी जो है इसको मैं साधारण कार्यक्रम नहीं मानता। आज का ये 26 मार्च 2021 का दिन ये टीबी एलिमिनेशन के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। ये इतिहास की ये भारत के और दुनिया के टीबी एलिमिनेशन के इतिहास में ये एक जिसे कहते हैं ना, एक वाटरशेड इवेंट जो है ये होना चाहिए, माइलस्टोन होना चाहिए। ये मेरे को इस बात की आभास भी हो रहा है, ये मुझे इसकी कल्पना भी हो रही है और मुझे इसका विश्वास भी हो रहा है, क्योंकि स्वयं मंत्री जी जो है अपने मंत्रालय से चलकर यहाँ तक आए हैं। और एक डॉक्टर जो उनका जॉइंट सेक्रेटरी है जो खुद भी कमिटेड है इस काम के लिए, क्योंकि उनके साथ मेरा जब लास्ट टाइम डिस्कशन हुआ था तो मुझे समझ में आया था कि उनका मन में भी इस काम को करने के लिए बहुत जज्बा है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये हिस्टोरिक मोमेंट है और ये 2025 में जब हम इसको एलिमिनेट करेंगे भारत से, तो हमको ध्यान में आएगा कि इसमें 26 मार्च 2021 के इस मीटिंग का बहुत बड़ा रोल होगा। और इसको आज के इस कार्यक्रम को हमें उसी भाव से लेना चाहिए, उसी जज्बे से इस मीटिंग को समाप्त करना चाहिए और उसी जज्बे को लेकर यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए कि अब हमको जल्दी से जल्दी बाकी क्षेत्रों से पहले जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनको टीबी मुक्त करना है। अब मुझे अब कोई कारण नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सारा कुछ तो हो गया है। उन इलाकों के बारे में स्ट्रैटेजी से लेकर पैसे की व्यवस्था से लेकर कहाँ बीमारी की तकलीफ़ है उसके डायग्नोसिस से लेकर और वहाँ के लोगों को इन्वॉल्वमेंट करने तक, और हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हमारे को नज़र आता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि अब हम टीबी को इस देश से 100%
समाप्त हरा देंगे। 2019 में हम लोगों ने कहा था टीबी हारेगा देश जीतेगा। परसों हमने टीबी मुक्त भारत का नया नारा दिया है और उसको लेकर हम सब मिलकर जो है ऑलरेडी काम करना हमने शुरू किया है। जॉइंट सेक्रेटरी महोदय से कहूँगा कि ऐसी मीटिंग है जिसमें मंत्री जी का इन्वॉल्वमेंट हो, इनको लगातार करते जाइए और अब जल्दी से ऐसी मीटिंग कराइए जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स उनको हमारे मंत्रालय की उपस्थिति में उनके द्वारा टीबी मुक्त घोषित करने का हमको सौभाग्य मिले और इसी भावना से हम लोग आगे काम करें। तो मैं कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सब बातें जो टीबी में काम कर रहे हैं सब लोग जानते हैं। सब बातें जो है यहाँ प्रेजेंटेशन में बताई गई हैं। हमारे अश्विनी चौबे जी ने बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख कर दिया, मंत्री जी ने सोने में सुहागा कर दिया यहाँ पर आज आकर, और इतने सारे एनजीओज़ और हमारे मीडिया के लोग हैं। इनसे भी मेरा ये कहना है, मीडिया के भाइयों से जो अभी वर्चुअली भी जुड़े हो, कि आपकी जो कलम में और आपकी जो कैमरे में जितनी बड़ी ताकत है वो शायद किसी बात में ताकत इतनी बड़ी नहीं है। मुझे 1994 का अनुभव याद है कि जब पोलियो मुक्त भारत बनाने का सपना देखने का मौका मिला था, तो जो हमारे मीडिया के भाइयों ने अपनी कलम से मेरी सहायता की, जो उन्होंने कलम से लिख कर अखबारों के अंदर उसको बड़ा आंदोलन बनाने में सहयोग किया, और उस समय का दूरदर्शन, उस समय के दूरदर्शन के डायरेक्टर मिस्टर पहाड़ी, उन्होंने, और उस समय का जो जी टेलीविज़न, 2 ही टेलीविज़न होते थे देश में, एक दूरदर्शन होता था, एक जी टेलीविज़न होता था। इन दो ने जितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया दिल्ली में सफल पोलियो मुक्ति का काम शुरू कराने में, और बाद में फिर उसको देश भर में 1995 में पहुंचाने में, जिसके परिणाम स्वरूप भारत पोलियो मुक्त हुआ है। तो ये जो हमारा मीडिया है इसका बहुत बड़ा रोल है, और हमें पता है कि यहाँ पे हमारे जो मीडिया के साथी हैं, ANI के पास तो ताकत है, वो सारे हिंदुस्तान के हर मीडिया तक हमें पहुँचा सकता है अकेला। और दूरदर्शन की जो रीच है, दूरदर्शन जो है जिस प्रकार से जो है गांव-गांव तक, ब्लॉक तक जो है, कहीं कोई दूसरा कुछ देखे ना देखे, दूरदर्शन सब लोग देखते हैं, वहाँ दूरदर्शन ज़रूर पहुँचता है। तो मीडिया के लोगों से भी हम अपील करेंगे कि हमारे टीबी मुक्ति के भारत के आंदोलन में अपना वो संपूर्ण योगदान दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज मंत्री जी को प्रणाम करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और इस आशा और विश्वास के साथ कि उनके नेतृत्व में हमारा मंत्रालय पूरा सहयोग करेगा, और हम इस देश के जो सभी ट्राइबल क्षेत्र है उनसे जो है टीबी को देश से भी पहले जो है ये समाप्त करने का हम लोग संकल्प लेते हैं आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। अंत में मैं इस कार्यक्रम के लिए, जैसा कि मंत्री जी ने कहा, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मंत्रालय को अवसर देने के लिए विशेष रूप से आभारी हूँ ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, ऑनरेबल मिनिस्टर का, कि आपने इस कार्यक्रम के लिए न सिर्फ समय निकाला बल्कि आपने यहाँ आकर इस कार्यक्रम को हमें मौका दिया होस्ट करने के लिए। मैं आभारी हूँ माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और अपने उन्होंने एक इंस्पायरिंग संदेश हम सभी को दिया। और मैं आभारी हूँ माननीय राज्य मंत्री जी का, अश्विनी चौबे जी का, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर हमें संबोधित किया। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ सभी राज्यों के ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों का और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। हम शीघ्र ही स्टेट्स के साथ इसकी एक फॉलोअप मीटिंग भी करेंगे सर, ताकि जो आज संकल्प आपने हमें दिया है उसको आगे हम कार्यस्वरूप में परिवर्तित कर सकें। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सभी कोलीग्स का जो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। विशेष रूप से आभारी हूँ एडिशनल सेक्रेटरी मैडम का, श्रीमती आरती आहूजा जी का, जिनके मार्गदर्शन में हम टीबी कंट्रोल का कार्य कर रहे हैं। मैं अपने सभी सहयोगी सेंट्रल टीबी डिवीज़न के सभी सहयोगियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सर कल परसों टीबी डे का प्रोग्राम हुआ था, तो उसके बाद हमारे पास बहुत कम समय था इस कार्यक्रम को करने के लिए, बट टीम ने मेहनत करके अच्छे से इसे भी आयोजित किया है।
मैं सभी को बधाई देता हूँ और साथ ही मैं मीडिया के सभी साथियों को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।